Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. I hope and believe you must be fine and in good touch of health, and must be following my talks or you can say lectures regarding the health education nowadays. Now you must be in the understanding that a technical health advisor or a technical manager or a health manager or a health promoter can not be a good technical promoter until and unless he has got a definite knowledge about the health education and the communication skills and obviously the communication ways and the importance of the communication of the health ethics, health behaviors, and of course along with that the management aspects of the health decisions. So communication first. Communication is obviously a relation of a human being with another human being, and how one human being can convey his or her knowledge to the other human being is communication. So communication can be regarded as a two-way process of exchanging or shaping ideas, feelings and information. So broadly it refers to the countless ways that humans have evolved or humans have picked up or have developed of keeping in touch with one another. So that is again development of the mankind. So health education, health communication is a part of health education. Obviously when we communicate somebody of the health ethics or health behaviors or health promotions, then obviously the person will be in a position to adopt those ways and to have a better health status or to improve the health status. So the health communication or the communication for health education is the process of promoting health by disseminating messages through mass media, interpersonal channels and events. Obviously those are different ways. We will discuss them in detail today. The communication is more than exchange of information. We did not share to tell somebody to the information, to convey the knowledge, to convey the belief, to convey the value, to convey the attitude. It is to modify someone's health behavior. It is to modify. It is first to increase somebody's knowledge and then to modify his or her behavior as far as health of a person is concerned. Maybe nutrition, maybe cooking, maybe vaccination, maybe water use, maybe whatever it is to improve the health habit or to change somebody's health behavior. So it's a process of necessary to pave way for desired changes in health behavior and inform individuals and community participation to achieve predetermined goal. We have got definite goal in our mind. We have got definite idea what we want to do, what should be done, what someone will need to do, and then we plan. We shape up the message, we shape up the knowledge, then we convey, and then we know the ways of communication, and we select the best way through which this communication can be made. Now see it again. It is a process. Health communication is a process necessary to pave way the desired changes in human behavior and informed individuals and the community participation to achieve the predetermined goal. As far as the health education is concerned, the health related ideas or targets are the goals over here. Now communication in recent years has developed into an interdisciplinary science drawing richly from the social sciences. The communication ways, the sort of communication techniques, the communication skills have evolved into a full-fledged sort of a discipline, and now it's a full-fledged market. The media, the other ways of communication, through mobile phones, through TV, through other communication ways, those have become a full-fledged field and full-fledged financial department. With the development of the newer methods of communication and information explosion, the mental development of the human being has expanded considerably for clearer thinking, better social and intersectoral coordination. Previously,
it was sometimes was very difficult to convey somebody the important aspects of life or the important aspects of health. Now, because of the development of the communication ways, the development of the media, the development of the other gadgets, other applications on the gadgets, the applications of the mobiles. So now the human beings behave different. They receive in a different way. They try to understand in a different way. They have got better ways of understanding the things. So this is obviously with the media explosion or the information explosion, the methods of communication and information explosion. The mental development of human beings has expanded considerably for clear thinking, better social and intellectual coordination. Now the communication and education are interwoven. So communication obviously and the health education can never be improved without best possible communication ways. So we can say safely that the communication and health education are interwoven. So health education helps people to make wise choices about their own health. Now everything is conveyed, the knowledge is conveyed, the knowledge is told, and now they have got the best choices with them. So the quality of life of their community in order to improve the quality of life of their community because of having better decisions, because of making better decisions, because of having better communication ways, better communication skills are there, better the knowledge has been communicated in a better way. So to do this, accurate information must be presented in an understandable form. That is where we are concerned. The information first has to be processed and then presented in an acceptable way, in an understandable way, in an easy way, in a homely way, in a homogenized way, in a friendly way. So often many different presentations of the same facts and ideas are needed. Certain communicating ideas should be there, certain matching examples should be there. The message, the knowledge should be conveyed in a friendly way. The message should be conveyed in an understandable way. The knowledge should be from the common life. The communication helps to equip people with the facts, ideas and attitudes they need to make informed decisions about their health. So to equip means to increase the horizon of people, to increase the knowledge of the people, to increase the thinking capacity of the people, to convey the best knowledge about the healthcare behavior. That will help them to have better understanding and the better knowledge about the health care behavior, and that will help them to make better decisions in order to improve their health, in order to improve the health of the community, in order to improve the health of the family. The communication occurs when a message is transmitted and it is best received. The important thing is what happens when the message reaches the people it is aimed at. Now, first the message was received, sender is there, educator is there. Now the message is processed, the message made comfortably understandable sort of a presentation, and now when the message is conveyed. हेलो वालेकुम सलाम। हेलो जी जी बोलें। वालेकुम सलाम। अलमायदा के साथ गली में आना है, सामने नहीं खड़ा होना। अलमायदा के साथ वाली जो गली है पार्किंग के साथ जो अंदर आ रही है उस गली में चले हैं। लेफ्ट हैंड पे है आमना ब्लड बैंक, आखिरी कोठी है, इसी गली में है, मुड़ना कहीं नहीं है। आगे आ जाएं। इसी एंड पे देखते आएंगे आमना ब्लड बैंक, आमना ब्लड बैंक। सफेद कार खड़ी है वहां से नजर आ रही है, गाड़ी खड़ी है। हाँ सफेद गाड़ी खड़ी है ना अंदर, वहीं आ जाए। रिसेप्शन पे दे दें आप।
पेमेंट हो गई। और क्या जाएंगे नहीं, हमारे छोटे सारे कैसे जाएंगे? जाएंगे नहीं? लड़की हाँ। जाने रही ना, हमारे छोटे सारे करने होगी ना, क्योंकि मैंने कैजुअली गुजरा था, मैंने कहा और आसिफ भाई मेरे लिए कोई चाय पिया, मैं खुद लेने जाता हूँ, मैं कहा चाय पियूँ, तो उन्होंने आसरा के बगैर ही कहा कि रमी मारूशा एक्सेप्ट कर रही है ऑफ़र को। मैंने कहा अच्छा ठीक, मैंने दूसरी बात ही नहीं, मैंने जाके मैंने जुल्करनैन को कहा भाई मैं तो अपनी डालना हूँ, आप उसको जो है किसी को कहें ना चाहे उसे दे दो, अब ये आसिफ कोई कहीं खुद डाल रहा है, वो भाग डाल देगा, उसे क्या है, वही तो चीज़ खाई है, बाल बराबर क्यों रखनी है, बेस्ट का है। अच्छा ठीक मैडम आई डाउट चिकन है इसमें। अच्छा चिकन है, अब दें आपका है चिकन कैल्शियम लाइसिस दें, क्या मतलब? तो नहीं देना तो नहीं दिया। मैं दे दूँ पहले, तो नहीं ठीक है कैल्शियम लाइसिस, जी मैं देखूँ पहले ताले में है या बाहर है। चिकन है नहीं, क्या है चिकन है, आप इस काट काट के डाल रहे हैं, चिकन है चिकन है। शेयर काट ही देना। ये जो है चिकन ही है, ये जो पीस इस तरह काट काट के डाल रहे हैं। अच्छा लेकिन 80% चीज़ें वही हैं, से वो टमाटर तो हम खुद नहीं डालते, जो हम खा के हैं, अभी खा के रखा है, ये बहुत महंगा काम हो गया मैडम। जगल मार के हम यूं कर रहे हैं। मैं किचन में नजर मारूं, आपका वेट बढ़े कम हुआ? मैंने चेक नहीं किया, काज करूँगा। एक और मार दिया। वो मैडम आपको पता है ना वो करते क्या हैं, वो कहता भाई पकड़े ना जाए, बेशक बंदा मार दो, जब पुलिस को नजर आता नहीं हमें मार देंगे, फिर वो मारते हैं। विराट कोहली भी दूसरे नंबर पे चला गया। हाँ सही ये चिकन है, लेकिन चिकन का रेट ही कुछ नहीं आपको। आओ आओ जी।
बात सुनना छोड़ेगा तू? बहुत डिसिप्लिन प्लेयर है वो। सारे डिसिप्लिन है। सारे डिसिप्लिन होते हुए हमारे फ्लाइंग कार क्या करूँ? अब मेरी एक फाइंडिंग सही साबित हुई है। शायद की सिगरेट पीने वाली। अब दूसरी फाइंडिंग सही साबित हुई या हो जाएगी वो भी। इसके साथ कोई रोला उसका इसका शायद उसका। मैडम वो नाइजेरियन है, मुजफ्फरगढ़ी है, वो गया तो गया। मैं कल आई हूँ जब तो किचन से ये किचन में से आ रही थी और वो किचन में गई तो चाय बना रहा और ये इतनी गुस्से में थी। हाँ हाँ करती हुई जब ऐसे गुस्से में थी क्योंकि मैंने देखा है एक दरवाजे से गया था। काम में खुद फिल्म देखने सिनेमा पहुंच गए। अच्छा ये फिल्म देखी भी मेरी? आप ले मैं नजर मारूँ जरा कीमे का। आप लें जरा। मैं कीमे को देखूँ। हमने आईडी कार्ड उठाने जाना है। अच्छा मम्मी का भी वो अपाजी का और आल्फा का। वो हमारा भी एक्सपायर हुआ पड़ा है, हम भी जाकर बनवा आप अपना एक्सपायर होने वाले हैं, मेरा और बेगम साहब का।
नहीं तसल्ली से नहीं। इतना थोड़ा छोड़ा कि आप इतराज ना करें। थोड़ा है, लेकिन अब आप रात तक आराम से बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे रात तक। हाँ है अच्छी बात। थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हुआ है कीमे को। और जी सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया, सबको ठंडा कर दिया। केस ये था कि एक साहब गए थे कोर्ट में, पहुंच गया, उन्होंने कहा जी किसी, क्योंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से भी कोई बयान इस तरह का आ रहा था, और शायद किसी सऊदियन कौंसिल की तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आई थी कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने केस को बहुत, और गया भी मर्द दूसरी शादी करने वाला खुद है कि मेरी पहली बीवी जो है मुझे रासा कर रही है थ्रू हर फैमिली, तो तकरार शुरू हो गई। अब जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि पहली शादी दूसरी शादी के वक्त पहली शादी वाली पहली बीवी से इजाज़त देनी जरूरी है, जो कानून जैसे खड़ा है। उन्होंने लिखा हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि चेंज करने से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। और एट द टाइम ऑफ दूसरी शादी पहली बीवी को हक मेहर अदा करना है, मुअज्जल या गैर मुअज्जल, क्योंकि मुअज्जल भी गैर मुअज्जल भी उसे मुअज्जल समझा जाएगा जब वो दूसरी शादी करेगा, लिहाजा वो पहले अदा करेगा, पेमेंट करेगा जो भी हक में लिखा हुआ है, और फिर इजाज़त देगा और फिर जाकर शादी करेगा। ये उन साहब के अपने केस के नतीजे में वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो खुद कोर्ट में गया है और जिन्हें शोर में चाहे हो गया मर गए, उड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। उन्होंने कहा ये सारा खाना खराब हो गया सिस्टम का पूरा, जो मर्जी जाएगा दूसरी शादी कर लेगा, बाद में मुकर जाएगा, दूसरी शादी के बाद पैसे होते हैं जो देगा वो। बाकी मैंने कहा दब के लिखा फैसला उसने, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है इससे बात ही खत्म हो गई। उसने कहा ये आइन के ऐन मुताबिक और मजहब के ऐन मुताबिक, इससे जो है मसाइल पैदा होंगे बगैर क्या करने से। और रखो जी कराची, अब या तो वो अदा करे, अब वो कहता है जी मैं क्योंकि जब इसका नहीं का केस बना था तो सारी दुनिया में उंगलियां मुंह में ले गई, सारी दुनिया में के हैं इतना स्टैब्लिश बंदा कहाँ ये मर रही थी, 60 BP आ रहा है, 70 BP आ रहा है, आखिरी सांसों पे हूँ, वहाँ गई भी थी कहीं, बहन कहीं ब्याई भी देहात में गई, डीजी खान कहीं राजनपुर से कहाँ वहाँ नौकरी कर रही थी LHB की, और कहाँ ये कि एकदम सारी चीज़ें डिफरेंट वे में आ गई। अब क्या है? अभी कुछ उदकी है जो मुसलसल हो रही है, तो उसमें जो है जो चीज़ें सामने आ रही थी स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें दुनिया ने मुंह में उंगलियां लेनी, भाई वो इतने प्यारे आदमी को, आसिफ नाम का आदमी था, उसको छोड़ के, और ये इसने उससे भी बेहतर आदमी ढूंढ लिया, सऊदी अरब से आया, इतना अमीर आदमी है, इतना खाता पीती फैमिली है, इतनी पर्सनैलिटी है, गाड़ी में वो लेने आता था। वो चंद दिनों बाद जो है एक नर्स के पीछे लग गया, और नर्स उसमें आ गई, जब तक बेटी हो चुकी थी तो नर्स आ गई, कारोबार चल गया, पहले कारोबार नहीं था, नौकरी नहीं थी, फिर तो जॉबलेस हो गया, फिर इसको नौकरी करनी पड़ी घर चलाने के लिए, अब वो आ गया उसका। अब वो जब पिक्चर में आया तो ऐसा ऐसा जो है चीज़ें
डिफरेंट डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई। जब डिफरेंट डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई, अब क्या करें जी, अब क्या करें, हम ये मामला बिगड़ता गया। तो इन्हें पता लगा जी वो तो एक्चुअली रातें नर्स के साथ गुजारता है, मैं अब बेटी के साथ हूँ के लिए, ये अपनी माँ को लेकर उसके घर। ये एक इंतहाई स्टैंडर्ड तरीका था जिसके तहत की गई। एक आदमी अपनी माँ को ही लेके जा सकता है, और अब क्या कोई कर सकता है। तो उन्होंने जनाब वाला इनकी बात नहीं सुनी, तो ये कोर्ट में चली गई, क्योंकि इनको मशवरा देने वाले भी हनीफ साहब थे और इनके वकील शायद राना शाह साहब थे। कोर्ट में गई हैं तो उन्होंने एक ही बात की है, दूसरी बात नहीं है। उन्होंने वहीं बुलाया, मियाँ बीवी तो हैं, वो मिलते भी थे, बात भी करते थे। उन्होंने कहा जी इजाज़त या तलाक, दोनों रास्ते मौजूद हैं, जो चाहिए अभी बताओ। कोर्ट तो बड़ी बात की बात है, सुनेंगे, पता नहीं कब तक केस चले, मैं अभी फैसला करूंगा, वरना मैं कोर्ट में तलाक लेकर ही जाऊंगा। इन्होंने वहां फैसला इजाज़त का किया। इन्होंने वहां फैसला इजाज़त का किया, इजाज़त देकर। ये खुद उल्टा कोर्ट में गई, खुद इजाज़त देकर आ गई। वैसे वो छुप के करता जो करता, खुद पहले माँ को लेके गई, वो भी गलत हो गया इसके हक में, और फिर कोर्ट में गई और फिर इजाज़त खुद दे के आई, रिटर्न इजाज़त दे के आई, और फिर चंद दिनों बाद फिर केस फाइल कर दिया। ये आप वाला ही है जी, आप वाला ही है ये। इसको अंदर बुलाऊं? अब तो ये बेल भी नहीं हो रही, इसका भी कोई तख्ता निकालो मैंने। हाँ ये बोल नहीं रहा, वो तार ही ली होगी ना। मुझे लगता है ये भी फेज में चल रहा है, कभी तेज हो जाता है, बंद हुआ ना, बंद में। तो अब जनाब इन्होंने जब दोबारा ये कोर्ट में गई नान नफका लेने, तो 7.5 लाख रुपए जब नान नफका आया तो उसने कहा मैं बसाता हूँ, तो इन्होंने कहा मुझे डाइवोर्स कर दो, तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो रहा, दो घर पूरे नहीं होंगे, तुम मुझे डाइवोर्स कर दो, मैं किसी और के साथ कर लूँगी। इस तरह तुम्हारा घर भी चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा, तुम 2 घर नहीं चला सकते। तुम्हारा क्या मकसद है इतनी फेवर करने का कि मुझे उससे मोहब्बत बहुत थी, वो तकलीफ थी। अब उसे कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, और तलाक दे के लेके किया क्या है देख लो। ऐसी को बेवकूफ़ औरत है ना, वही बात है ना। यहाँ तो मैं भी आपकी नवा हूँ, ये रखेंगे ही फेंकेंगे हाँ वही ना, हालांकि तुम वही भैंस चबल सी तुम हो। फिर अब चुप करके बैठेंगे, 5-7 मिनट का काम रह गया मैं मजबूरी है, वरना तो कर लिया था, फिर पता नहीं क्या हो गया उसको, आ गया उसे। आप इतनी देर में क्या कर लो, सारा लेक्चर खराब करा दिया, पहले भी मैं बोलती थी। अब तो ये ऐसे ही जाएगा, अब क्या हो सकता है। क्या लगा कोई गड़बड़ हो रही है, सही नहीं हो रहा। वो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ सर, वो कहता है 3 फेज में 1 फेज में आ रहा आ ही नहीं रहा। वो अगर आप कहते हैं तो मैं मीटर के साथ से तार टोटल लगा के आपको चालू कर देता हूँ, प्रिंट का आपका काम हो, लेकिन आपको वापडा वाले से कंप्लेंट करके इसे करवाना पड़ेगा, या वापडा वाले से करवा दें तो फिर मुझे बताएं। उससे कहीं खुद ही कर दो, क्या हो गया। वो तो वापडा वाले तो फिर ऊपर चढ़ के खंभे पे चढ़ के ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। फिर वापडा वाले अभी ठीक कर दें, ऑन कर दें। अब क्या चीज़ नहीं चल रही, अब बाहर वाले पंखे नहीं चल रहे, फाइनेंस वाले और लाइटें वगैरह नहीं चल रही। हाँ सारा ऑन करवा दें, ऑन कर दें। अब हो गई रिकॉर्डिंग, कहाँ होगी, थोड़ी सी लगी, 5 मिनट लगे। अब कुछ नहीं हो सकता, वो आफ्ताब बीच में आएगा। चलो कह रहा कि कंप्लेंट बुलाया आप, कंप्लेंट के लिए
वो चिप लगी हुई थी मीटर के ऊपर, कहता है वो मैं अगर खोल के कर दूं तो फिर वार्ता वाले आके तुरंत चिप से नहीं करेगा ना, यहीं से दूसरे में डाल तार देगा। नहीं, तार वो निकालेंगे तो ऊपर करते हैं ना, वो पूरा सील बंद होगा, बड़ा 3 फेज मीटर है ना, 2 फेज वाला तो कर लेते हैं। चलें। और अगर तार काट के करेगा फिर भी वो इतराज करेंगे कि आपने काटी क्यों, डायरेक्ट लगाइए तार। चले वो सुबह ही होगा, ज़रा बुजुर्ग का नाम सबसे क्या कंप्लेन करवाएं। बिल वगैरह करें ना, बिल उसी का। कॉल करके कंप्लेंट करें। नंबर होगा तो कल्याण को अभी मैं दे देता हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, उठा देता हूँ बिल वहाँ से।